minutes. But I will give you little bit. If whenever it's too long, I will give you 2, 3 or 1 by 2. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most merciful and the most powerful. मैं सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में अपनी वंदना करता हूँ, स्पर्श करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ भारत माता को। Today, the most important day in the history of our state, Jharkhand, our Bhagavan Birsa Mundaji's birthday, and that day is the foundation day of Jharkhand also. And our Pradhan Mandri, myself and our Chief Minister, we Arjun Mundaji, the Union Minister, and Annapurni ji, all are together in the morning that Birsa Mundaji's birthday is being declared as the tribal day of the nation. आज का दिन झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज राज्य का स्थापना दिवस है। इसके साथ ही आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन झारखंड की धरती पर हुआ और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और अन्य गणमान्य अतिथि गणों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। So this day becomes more and more historical day in the life of every Jharkhand citizen. इसलिए आज का ये दिन समस्त झारखंड वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। I am really proud to share the dais on this day with our Honorable Chief Minister Sri Hemant Soren ji, who is presiding over this August event, and the most senior, one of the most senior political leader in the country, my colleague when I was the member of parliament in the 2000 and honorable member of Rajya Sabha today, Sri Man, whom we call as Guruji, Sibu Chorenji, honorable ministers on the dais, honorable members of the parliament, honorable members of the Jharkhand Legislative Assembly, officers of Jharkhand government, my good friends from print and media, Bhai Begno, and to everyone, Jogar. आज मैं इस मंच को साझा करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। आज हमारे बीच राज्य के मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं, उनकी उपस्थिति है। हमारे बीच अन्य गणमान्य अतिथि गणों की उपस्थिति है और आप तमाम लोगों की उपस्थिति है। आप सभी को मैं जोहार कहता हूं। The 15th November brings us double rejoice and elation as on this day our Dharti Aba, our great leader Bhagavan Birsa Munda, take birth on this holy land. I pay homage to Bhagavan Birsa Munda ji, the great freedom fighter who has lived only for 25 years but made a history for another 25,000 years. 15 नवंबर का ये दिन हमारे लिए दोहरी खुशियां लेकर आता है क्योंकि आज ही के दिन राज्य का स्थापना दिवस है और धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। झारखंड के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ 25 वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन आने वाले कई 2500 वर्षों तक ये राष्ट्र उन्हें याद करता रहेगा। Today we are entering into the 24th year of the formation of our state. In the last 23 years of our state has established a new dimension in development being added. I am sure there is a bright future for our state, Jharkhand. आज हम झारखंड राज्य की स्थापना के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य में ने पिछले 23 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के साथ ही झारखंड ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुझे उम्मीद है झारखंड विकास के लिए ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। Yes, we all know
that today both central and state has announced a lot of schemes for the development of Jharkhand. Today myself here on this dais, myself and our Chief Minister has inaugurated lot of development schemes for the youngsters to come up for the small scale industries, to the beneficiaries of scholarships, beneficiaries for sports persons, and we are declaring a housing scheme. So many schemes have been announced by our state government. आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसके साथ ही हमारी राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कई लाभकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभ उद्घाटन किया गया है, उनकी घोषणाएं की गई हैं। Today, our Pradhan Mantri Shriman Narendra Modi ji has announced and launched a 24,000 crore initiative aimed at enhancing the well-being of our tribal community. आज हमारे लिए बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल लोगों के लिए, हमारे जनजातीय समुदाय के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है। Today morning, myself, our Pradhan Mantri, our central ministers and our chief minister all visited Uliyatu, the birthplace of our great warrior Bhagavan Sri Birsa Munda ji. Our Prime Minister became the first Prime Minister who ever visited the Uliyatu, that he made a history today again. आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय और कई सारे लोगों ने बिरसा मुंडा के जन्म स्थली उलीहातू का परिभ्रमण किया और वहां गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म स्थली तक पहुंचे हैं। So both state and the central governments are keen about developing the Jharkhand state. We must all utilize the beneficiary schemes announced by both the states, at the center government and also the state government. केंद्र और राज्य की सरकारें राज्य विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर रही हैं, उनकी उद्घोषणाएं कर रही हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। And I wish all the beneficiaries who got the appointment today, who are going to contribute a lot in the development of the state as well as the development of the country. मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन लोगों को आज यहां पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो राज्य के साथ ही राष्ट्र विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। We all know our Jharkhand is the richest state in the Mother Bharat, and we must utilize all the resources for the development of the poor people living in our Jharkhand. जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा झारखंड राज्य खनिज संपदा में एक धनी राज्य है जिसका प्रयोग हम राज्य विकास के लिए कर सकते हैं। The state government is taking every step to solve the basic issues concerning the people. The issues of education, health, poverty, unemployment and migration can be resolved only when we consciously work together to solve these problems. हमारी राज्य की सरकार बहुत सारी योजनाएं लाकर समस्याओं के समाधान में लगी हुई है। राज्य में बेरोजगारी और पलायन की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों को भरने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। Education is the right tool to open the gates, and I have visited so many schools. The Chief Minister's School of Excellence is working very well. Like that, the central government has also sanctioned the maximum number of Eklavya schools to our state to provide access to the quality education for every child. मैंने राज्य के कई उत्कृष्ट विद्यालयों का परिभ्रमण किया है और वहां की स्थिति को देखकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उनकी स्थिति वाकई बहुत अच्छी है। यहां हमारे राज्य में एकलव्य विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर भी हम क्वालिटी एजुकेशन को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और बढ़ावा दे सकते हैं। First time
The state government has introduced the Guruji Student Credit Card Scheme, which is giving a credit limit of rupees 15 lakh made available to the students at a meager, very, very meager rate of interest of 4% per annum. पहली बार हमारी राज्य की सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैंक के माध्यम से बच्चों को अधिकतम 15 लाख रुपए की राशि 4% के मिनिमम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। We want all our Jharkhand students to be able to compete with the others in the competitive examinations so that they get into medical, engineering, the professional courses, they will become IPS, IAS officers in the future. For that, there is a free of cost under Mukhyamantri Shiksha Protsaran Yojana. Under this scheme, students are given free coaching and a stipend of rupees 2,500 per month during this coaching period. हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और दुनिया भर के विद्यार्थियों से वो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है तथा कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रुपया प्रति माह का भुगतान भी उन्हें किया जाना एक अच्छी पहल है। The state government has made it mandatory for the private companies too that they should provide jobs up to rupees 40,000 per month to the local youths only, so that the local youth is getting the employment opportunities more. ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर हमारे राज्य में यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार में आरक्षण देने की बात कही गई है ताकि वो अपने आप को आर्थिक रूप से सबल बना सके। Government has started Birsa Yojana, in which the rural youth are being trained and certified. And being trained and certified, if they don't get the job for more than 3 months, that male will get rupees 1,000 per month, and the female, specially abled transgenders, will respectively get 1,500 per month for a year through DPT. ये अच्छी बात है कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु हमारी सरकार ने बिरसा योजना की शुरुआत की है। वर्तमान में राज्य के कुल 80 प्रखंडों में ये योजना संचालित है, जहां पर युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण दिया जा रहा है और अनियोजित होने की स्थिति में उन्हें प्रति माह सहायता राशि भी दी जा रही है। And today we have inaugurated another housing scheme sponsored by the state, Abuva Awas Yojana, to 8 lakh families. Under this scheme, beneficiary will get rupees 2 lakh as government contribution to construct a Pakka house in 31 square meter with a kitchen and 3 rooms. आज ही के दिन हमारे द्वारा सभी परिवारों के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिए आगामी 3 वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को राज्य संपोषित अव्वा आवास योजना से लाभान्वित करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे लाभुकों को 31 वर्ग मीटर में रसोई घर सहित 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाना है। Mandraga program is being modified. 95 man days payment will be made for construction of the toilet under Swachh Bharat mission. That will help 2.5 lakh houses in the coming financial year. मनरेगा में भी और सुधार किया गया है तथा 95 मानव दिवस की मजदूरी तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का लाभ भी दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख आवास का निर्माण किए जाने का कार्य तत्परता से जारी है। And today the third phase of आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दवार is being started. That will take care of the poor people. और आज ही के दिन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का
तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी। Today, the capital of our Ranchi is being well connected with the neighboring states' capitals like Calcutta and Patna by Vande Bharat trains. I am hope and I assure you that further such speedy, established trains will be getting introduced, and I am very glad that the PM has declared that the 100% electrification of our Jharkhand railway line is completed. आज हमारी रांची पटना एवं हावड़ा से वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ गई है। भविष्य में राज्य के अन्य जगहों को भी वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये माना है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि रेलवे का 100% विद्युतीकरण हमारे राज्य में कर लिया जाएगा। Everybody wants to empower the woman, and our government today has announced a new scheme for the self-reliance of the woman, Ajivika mission. Through financial inclusion and training, women are being made self-dependent. आज पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उन्हें आजीविका मिशन से जोड़ा जा रहा है ताकि वे गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलकर अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकें। A new scheme to run in the name of our great legendary Pulojano Ashirwad Yojana. More than 32,000 women have quit selling their Hariya Daru and have started other respectable business for their living, and their livelihood has been taken care. हमारे राज्य की स्वतंत्रता सेनानी फूलो झानो के नाम से हमारे राज्य में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 32,000 से अधिक महिलाएं दारू हड़िया की बिक्री छोड़कर अब सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जुड़ चुकी हैं। The primitive tribes welfare being taken care. We got a 2.5 lakh population of SPT tribes. That group has to be taken care and special attention being taken to safeguard their lives. राज्य में आदिम जनजाति की संख्या भी बहुत अधिक है। 2.5 लाख इनकी आबादी है, जिनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। Mobile rural clinic scheme has been launched to provide better health facilities to primitive tribes under the Jharkhand Swasthya Pragari scheme. Satya Didi are given extra incentives on the basis of their performance. राज्य के आदिम जनजाति बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निमित्त वर्ष 2023-24 में चलंत ग्राम क्लिनिक योजना के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामीण सहियाओं के कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर जन जन तक स्वास्थ्य योजनाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। So we want a green Jharkhand, a clean Jharkhand. Under the Swachh Bharat Mission Rural Phase 2, toilets are being made for those families which have come out of the joint family and are living separately. Community toilets are being developed at various locations under ODF plus management of solid and liquid waste is also being done. हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड राज्य स्वस्थ हो। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत उन परिवारों के लिए अलग से शौचालय बनाने की व्यवस्था की जा रही है जो परिवार संयुक्त परिवार से अलग होकर अपने एकीकृत परिवार में अभी रह रहे हैं। The central government has launched a Jal Jeevan mission to provide safe and potable water to all the villages. Our coverage of tap water has been increased from 6% in the 2019 to 45% in the last 4 years. We need to provide special inputs to this scheme to saturate all households with piped water supply, that is protected water, protect us from the diseases.
केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी गांवों तक सुरक्षित एवं पीने योग्य पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारे राज्य में 2019 से अब तक पिछले 4 वर्षों में नलों के माध्यम से जलापूर्ति का प्रतिशत 6% से बढ़कर 45 तक हो गया है। इसे 100% करने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। In spite of all our efforts, still Jharkhand is number 2 state as far as the economical development is concerned, not from the top but from the bottom. In the next 5 years, we all must work together. We must forget about our caste difference. We must forget about our religious difference. The elections will come, parties will fight. Once the election is over, we must all join together and with one single platform, that is development, development, development. With all the resources what we have today, definitely Jharkhand will become number 2 from the top, the list. That is our ultimate aim and that is our sankalpa today. That is the oath we have to take in our heart today and we all must move towards it. That is the real homage we are paying to the Birsa Munda who laid his life at the age of 25 for this nation and for Jharkhand. सरकार के द्वारा किए जा रहे अनेक प्रयासों के बावजूद भी हमें इस बात का दुख है कि आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में झारखंड नीचे से दूसरे पायदान में है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने जातिगत भावनाओं से, अपने सांप्रदायिक भावनाओं से और अपने राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर एकजुट हो जाएं और जब भी हमें मौका मिले हम एक साझा प्रयास करें ताकि झारखंड आर्थिक समृद्धि के रूप में ऊपर से दूसरे या पहले नंबर पर आए और हमारे यही प्रयास धरती आबा बिरसा मुंडा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। I once again pray to God for the beneficiaries who got the appointment today. They must get every wealth, health and happiness in their life. With these words, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand, Johar to everyone. एक बार फिर राज्य विकास के दृढ़ संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। झारखंड आगे बढ़ेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से जोहार कहता हूं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय राज्यपाल महोदय के लिए, इन ऊर्जावान विचारों के लिए और झारखंड विकास की इस समग्र सोच के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब आज के इस अवसर की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का ये चित्र नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ये स्मृति स्वरूप ये चित्र, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज भी बनी रहे। और अगला आग्रह आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताकि आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहें। एक वृहद आयोजन के गवाह बन रहे हैं हम और आप, जिसका ये अंतिम पड़ाव है और यहाँ स्मृति हमारे चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल मैम से निवेदन करती हूँ, कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को। तालियां आपकी ओर से स्मृति स्वरूप जोरदार हो। माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच। मैं उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह करती हूं स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। हमारे बीच श्री राजेश ठाकुर जी,
राज्य समन्वय समिति के सदस्य, मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राजेश ठाकुर जी का ये सम्मान, ये स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद सर। और एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राज्य स्थापना दिवस का ये भव्य समारोह अपने समापन पर, लेकिन इसके बाद एक बहुत सुंदर सी शाम सजी हुई है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। कहीं मत जाइएगा, भरपूर